Might need put it down. Hi everyone, thanks for coming. We'll just wait for 2 minutes. All right, I guess we can kick this off. Perfect. Hi everyone, thanks for joining, and I hope you all can hear me. We would like to keep this session as engaging as it can be. We'll run through 5 pitfalls, like we promised, the 5 challenges in building construction. But before that, we'll just begin with quick introductions. I am Varshit Maheshwari, your host from Madwin Consulting. And I'd like Zilpet to please introduce Mr. Akhil Saxena, who is a guest speaker for the event. Welcome all. Good afternoon. I'm Zulmit Sharma from Manama Engineers. First of all, I would like to give you a big thank you for being here today. So here we have 2 sessions. First 30 minutes where Mr. Akhil will tell you about 5 pitfalls, and second session for question and answer for 15 minutes. Now, without wasting for any further time, I would like to introduce Mr. Akhil Saxena. He's a civil engineer graduate from Punjab Engineering College, boasts a 13-year career filled with remarkable achievements. He held significant roles in distinguished companies like Unitech and Punj Lloyd before co-founding Manumov Engineers Private Limited in 2012 as the leader of Manumov Engineers Private Limited's project management consulting division. Akhil has successfully overseen numerous challenging projects. Some of his notable contributions include the Chandigarh Airport Project, Rameshwaram Residency, Vega School, SDFC School, Mohini Tea Factory, and HCAH hospitals. Akhil's unwavering commitment to excellence in project management and his aggressive approach have consistently raised industry standards. So over to you, Mr. Akhil. Yeah, hi. Thank you, Varshit. Thank you, Zulmit, for this wonderful introduction. Hi, everyone. Good afternoon. Very warm welcome to all of you to this discussion on 5 pitfall for constructing a building. Looking forward for a wonderful discussion with Varshit. Um, we are a project management consulting company, building all kind of buildings span all over India. We are currently working in hotels, schools, industry, warehouses, apartment, individual houses, office interiors. So we work along the entire spectrum of the building construction. So let's jump right into our discussion. So, Varshit, shall we start with a discussion on 5 pitfalls? Of course, but just before we do that, I think Zilmit mentioned a lot of projects, names like Mohini Teas and other schools, HDFC schools and stuff. So I think we'll now have to live to the expectations of our audience in terms of delivering what we promised. Sure. Perfect. And let's jump right into the 5 pitfalls. I think our first topic for the day is not having enough clarity on the date of completion and costs. Let's start with that. And sir, I would love it if you can just take examples, case studies, tell us about your experiences with real-time projects. So let's Yeah, let's yeah. just So Varshit, जो भी मैं बताने वाला हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही है, जो भी मेरे पास अभी जो भी हम बात करने वाले हैं, तो मैं वहीं से आपको शेयर करने वाला हूँ. सो बेसिकली जो ये पिटफॉल है, ये दिस इज द बिगेस्ट पिटफॉल जो हमने अभी तक फेस किया है. इसके अंदर मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि
सब लोग फटाफट से प्रोजेक्ट की बात करते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं बिफोर एक्चुअली रियलाइजिंग कि उनको किन पैरामीटर्स पे प्रोजेक्ट की सक्सेस और फेलियर को मेजर करना है। इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वी कॉल देम बेसलाइंस। सो Got it. the very first step of any project management thing that you can do is planning your scope, time, and cost. So the first step that we do that should be done in any kind of project is establishing these baselines. So मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा जो हमने 4-5 साल पहले फेस किया था बिफोर कोविड आई थिंक। हम लोग उनसे मिले हमारे एक एसोसिएट कंसल्टेंट है, उन्होंने हमें एक टी फैक्ट्री ओनर से मिलाया। उनका एक अच्छा ब्रांड है, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा ब्रांड का, बट उनका एक अच्छा ब्रांड है टी में, और वो अपनी एक नई फैक्ट्री शुरू करने वाले थे सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी जो टी Got it. प्लांटेशन एरिया है वहां पर, तो उनका टी लीफ प्रोसेसिंग प्लांट था जो वो बना रहे थे। तो वो पिछले 2 साल से बना रहे थे। जब हम उनसे मिले तब उन्होंने बताया कि वो पिछले 2 साल से बना रहे हैं और उनके इन हाउस प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं। डिजाइन कुछ कुछ पार्ट तो वो खुद डिजाइन भी करवा रहे थे इन हाउस। सो अच्छा. जब हमने उनसे समझना शुरू किया कि क्या स्टेटस है, कहाँ से चले थे, क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि हम हर महीने कुछ, हमारी टीम हमको कुछ टारगेट देती है, उनमें से कुछ टारगेट अचीव हो जाते हैं और कुछ नहीं होते, और सही चल रहा है। उनके हिसाब से उनकी टीम बढ़िया काम कर रही थी कि जो भी वो महीने का टारगेट रखते थे उसमें से कुछ ना कुछ अचीव हो जाता था। तो हाँ. व्हेन वी इंक्वायर देम कि आपका ये प्रोजेक्ट कब खत्म होगा या किस कॉस्ट में खत्म होगा या क्या स्कोप है जो आप देख रहे हो इस प्रोजेक्ट को खत्म होने में, तो उनके पास कोई आंसर नहीं था। ही वाज एक्चुअली केप्ट इन डार्क बाय हिज प्रोजेक्ट टीम कि ओवरऑल प्रोजेक्ट क्या है, स्कोप कैसे डिफाइन किया गया है प्रोजेक्ट का। तो उन्होंने हमें ऑनबोर्ड लाइव हमें अपनी टीम में, तो हमने उनके लिए एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट प्लानिंग रन करा जिसको हम CYC प्रोग्राम बोलते हैं हमारे यहाँ। तो उसके अंदर हमने उनका कॉस्ट का, स्कोप का और टाइम का बेसलाइन डिफाइन किया। और जब हम ये कर रहे थे देन एट दैट टाइम वी रियलाइज कि मोस्ट ऑफ द काम, मतलब जब तक ये डिस्कस जब तक ये क्लैरिटी नहीं हुई थी तब तक उनका ये अंडरस्टैंडिंग था कि प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है, और द हाँ. मोमेंट या कंसल्टेंट काम नहीं कर रहा है, ड्राइंग नहीं आ रही है या फिर कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है। जब हमने वो रन किया CYC उनके यहाँ, तब उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि मोस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट वाज स्टक एट हिज एंड। उनको Okay. बहुत सारे पैकेजेस फाइनल करने थे, वेंडर ऑनबोर्ड करने थे, जो वो नहीं कर रहे थे, उनको कोई बोल भी नहीं रहा था। अच्छा. एवरीबॉडी वाज हैप्पी। तो हमने अगस्त में ऑनबोर्ड हुए थे उस टीम के अंदर, और उनका टी हार्वेस्ट सीजन होता है अक्टूबर नवंबर में। तो अगर वो हार्वेस्ट सीजन मिस कर जाते तो उनका नेक्स्ट हार्वेस्ट सीजन उनको मिलता फिर टी लीव्स का, और वो पूरा 1 साल उनका फैक्ट्री का जो भी उन्होंने कैपेक्स इन्वेस्ट किया था वो सारा वेस्ट हो जाता। वेस्ट हो जाता मतलब उनको 1 साल वेट करना पड़ता रिटर्न के लिए। सो हमने प्लानिंग करी, और प्लानिंग के बाद हमने 3 महीने में वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर करके उनको उनका कमीशन करा दिया। उनका जो टी हार्वेस्ट सीजन था वो उन्होंने अचीव कर लिया और वो शुरू हो गई फैक्ट्री। तो Got it. बस यही इसके अंदर मैं कहना चाहूंगा कि जो ये प्लानिंग का जो चीज है, जो लोग लाइटली लेते हैं कि प्लानिंग क्यों करनी है, सीधा काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा रेड फ्लैग है कि आपको एक बार प्लानिंग देखना चाहिए कि आपका बेसलाइन क्या है। चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे आप डेवलपर हैं, चाहे आप डिजाइनर भी हैं, हम्म. अगर आप किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट प्लान आपके पास हमेशा होना चाहिए। अदरवाइज योर एडॉक प्लानिंग विल गिव एडॉक रिजल्ट्स। सो Got it. आई थिंक 2-3 क्वेश्चन है मेरे यहाँ दैट्स पे. अबाउट इट। हाँ जी। Got it. सबसे पहले तो आपने आई थिंक 2-3 बार मेंशन किया CYC. व्हाट इज CYC? सो हमने जस्ट टू ओवरकम दिस प्लानिंग इशू, क्योंकि हम लोग भी जब एज आई टोल्ड यू वी आर अ PMC कंपनी, तो जब हम क्लाइंट से बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट वेट करते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्टर ऑनबोर्ड हो जाएंगे तब मैं अपनी PMC ऑनबोर्ड करूंगा। अभी तो ये सिनारियो थोड़ा चेंज हो गया, लेटर ऑन, मतलब अर्लियर ऑन ये थोड़ा सा इसी तरह का सिनारियो था। अब तो प्रोजेक्ट कंसीव होते ही लोग PMC ऑनबोर्ड करने लगे। आज से 8-10 साल पहले इसी तरह का सिनारियो था। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कस्टमर को कि हमारा एक प्रोग्राम है CYC 21, जो कि प्रोजेक्ट में प्लान, अगर आप PMC हायर करोगे तो वो PMC आपको जो
3 महीने में प्लान बना के देगी अलॉन्ग विद द बजट एंड कैश फ्लो। वो प्लान हम आपको 3 हफ्ते में बना के दे सकते हैं और उसके ऊपर पूरा बाय इन क्रिएट कर सकते हैं जितने भी स्टेक होल्डर उस टाइम तक प्रोजेक्ट में आइडेंटिफाई हो चुके हैं उनके साथ। तो Got इट it. इज अ वेरी स्पेसिफिक डिलीवरेबल एंड वेरी इम्पैक्टफुल डिलीवरेबल। This brings me to my next question. आपने बोला कि 3 महीने में जो एक पीएमसी प्लान कर रही है वो आप 21 दिन में कर देते हो, right? यस। तो what size of projects are you able to plan in 21 days? तो अप टू लाख स्क्वायर फीट ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि अप टू लाख लाख 1.25 लाख स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट के ऊपर हम नहीं कर सकते। Got it, got it. अगर And वो 5 लाख 6 लाख स्क्वायर फीट के आसपास होता है तो उसमें थोड़ा टाइम और लग जाता है, मतलब उसमें शायद 1 वीक 10 दिन और लग जाता है। got it, understood. Just one more question on this particular topic. आपने प्लान बना भी दिया, आई थिंक सर कॉन्ट्रैक्टर्स तो आपकी साइड पर तो मतलब plan on papers versus on ground reality is very different. So यस ट्रू। how do we make sure that whatever we are planning it is actually happening our side? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो जो पहले कर रहा था वही कॉन्ट्रैक्टर अब करेंगे, राइट? और ट्रू। डेवलपर्स मतलब आई थिंक एवरी डिपार्टमेंट विल वर्क द वे दे वर वर्किंग। तो यस। what changes with that plan? मतलब how do we aim on achieving that efficiency? So that is what the fifth pitfall is. So we Okay, can discuss it in detail once we reach sure, there, I think. sure. So sure. Done. We will jump into the second one right away. Long All right. ineffective project review meetings. And with this, we try to keep it short and interesting. Yeah. So in projects, so there are so many stakeholders involved in a construction of a nominal size of a building. Even if you're building a house, there are so many stakeholders involved in this. हाँ, So what we have faced that जो भी स्पॉन्सर होते हैं वो जब प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग करने जाते हैं तो एक पूरा मतलब दरबार लग जाता है बड़ी से। सारे कंसल्टेंट बैठे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बैठे होते हैं, एक तरफ से एलिगेशन लग रहे होते हैं, एक तरफ से डिफेंड हो रहा होता है, दूसरी तरफ से एलिगेशन लग रहे होते हैं, दूसरे लोग डिफेंड कर रहे होते हैं। और जो स्पॉन्सर है उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिलती कि प्रॉब्लम कहाँ है। ऑल ही कैन हियर इज सम ब्लेम्स और सम स्टोरीज कि ऐसा हुआ था तो ऐसा हो गया था तो वैसा हो गया तो वैसा हो गया। तो हमने एक बिल्डिंग करी थी, हाई राइज बिल्डिंग थी, कमर्शियल बिल्डिंग थी इधर नोएडा में। तो उस पर्टिकुलर थोड़ा इंटरेस्टिंग था इसलिए मैं बताता हूँ कि उसमें हाँ, वो प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग करते थे क्लाइंट। और वो प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग ऐसा होता था कि सुबह सब लोग 10 बजे मिलते थे और okay. सुबह से वो शुरू होती थी। फिर दोपहर को सब लोग बैठ के लंच करते थे, क्लाइंट पिज्जा ऑर्डर करते थे तो सब लंच करते थे बैठ के, और शाम को 6 बजे जाके वो मीटिंग खत्म होती थी। हाँ, और एंड में निकलता क्या था किसी को नहीं पता कि क्या एक्शन आइटम निकला, क्या कमिटमेंट है, क्या करना है, किसी को कोई क्लैरिटी नहीं। बस शाम हो गई तो सब घर चले जाएंगे, ऐसा हो गया कि अगले हफ्ते मिलेंगे हम बाकी का। और इट वॉज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, इवन द कॉन्ट्रैक्टर्स, yeah. कि सबको ये लगता था कि क्या हो रहा है। और थोड़े दिनों में क्लाइंट को भी रियलाइज हो गया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा सब जाओ साइड में, और मैं रोजाना साइड पे आके ही बैठ जाता हूँ, तभी मुझे क्लैरिटी मिलेगी हो क्या रहा है। और उन्होंने फिर बुलडोज करना शुरू किया कि जो भी वो कर सकते थे उन्होंने किया और करवाया। सो इसके जो मुझे एट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स लगते हैं वो ये कि एक तो प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं है सबसे पहले, और अगर हाँ, प्रोजेक्ट प्लान है भी तो उसके ऊपर बाय इन किसी का नहीं है। किसी प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपने कंप्यूटर में एक प्रोजेक्ट प्लान बना दिया है और हम्म, उसके अंदर किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, स्टेक होल्डर्स का, कॉन्ट्रैक्टर्स का भी नहीं है, कंसल्टेंट्स का भी नहीं है। सो इस तरह के प्रोजेक्ट प्लान वर्कआउट नहीं करते, आई क्योंकि थिंक आप आइसोलेशन में बनाते हो और आइसोलेशन में उसके अंदर जो सबका नॉलेज है, सबका जो अंडरस्टैंडिंग है, सबका जो पर्सपेक्टिव है वो उसके अंदर निकल के नहीं आता उस पेपर में। करेक्ट। सो आई उसको थिंक सॉल्व करने के लिए, हाँ जी, यस, very interesting point that you mentioned. I'm sorry to break you here. When you say कि सबका buy-in होना चाहिए, this makes a lot of sense. क्योंकि अगर मेरा जितना buy-in है, उतना ही interested होऊंगा मैं to follow that particular procedure. ट्रू ट्रू ट्रू, Otherwise, अग्री। procedures or checklists is the last thing that I want to see in front of my eyes.
देखना ही नहीं, काम चल रहा है ना, चलने दे, वो वाला Yes, yes. मेंटालिटी. But if I am invested in the planning phase itself, on that guidelines, or on that whole schedule, I will definitely be more interested, and I would like everybody in my team as well to follow that particular schedule. So I think bind वाला point काफी interesting है यहाँ पे. True, true. It was a major problem too. So जो हम ये प्लानिंग करते हैं इसके अंदर मतलब इंडस्ट्री में भी जहां भी अच्छी प्लानिंग होती है वहां पर ये दो चीजें तो 100% होती हैं. एक तो अलाइनमेंट मीटिंग बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड Right. सेकंड को क्रिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान. कोई प्रोजेक्ट मैनेजर अगर अपने कंप्यूटर में बैठ के अपने लैपटॉप में बैठ के एक अलग से आइसोलेशन में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बना देंगे तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान वर्कआउट नहीं करने वाला. पीरियड. Mm, correct. Makes a lot of sense. सो इवेंचुअली उन क्लाइंट को ये समझ आया और फिर उन्होंने बाद में कुछ कुछ चेंजेस करे, पर काफी लेट हो चुका था. उनका प्रोजेक्ट हैंडओवर की स्टेज पे था. परेशान हुए, पर ठीक है. लेकिन उन्होंने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हमें रीच आउट किया और बोला कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट थोड़ा ढंग से करेंगे. Perfect. All right. With this, let's jump into our third point for the day. All seems under control until it's too late. यस, यस. What? सो दिस इज, यस. सो प्रोजेक्ट्स के अंदर देर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट कीप्स हैपनिंग ऑन इन द प्रोजेक्ट. क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर इस तरह का है इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, या आप कहो कि जो ईस्ट में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, कि आप थोड़ा सा डिजाइन करते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं. आप कभी भी अपना कंप्लीट डिजाइन, कंप्लीट प्रोक्योरमेंट, कंप्लीट प्लानिंग के बाद नहीं शुरू करते हैं. वेस्टर्न कंट्रीज में, यूजली वेस्ट यूरोप में, इस तरह का कल्चर है कि जब तक आपका पूरा डॉक्यूमेंट तैयार नहीं होगा ड्राइंग का, जब तक आपका पूरा डॉक्यूमेंट तैयार नहीं होगा प्लानिंग का, आप कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं कर सकते. Got it. तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पूरा डिजाइन कभी भी तैयार नहीं होता. और अगर आपने शुरू में जो कन्वेंशनल तरीका है प्लानिंग करने का, उसमें क्या करते हैं प्लानिंग इंजीनियर, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट प्लान कर देते हैं कि शुरू से उठाया और एंड तक प्लान कर दिया, चाहे उनके पास डिटेल है या नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का कि शुरू में किसी के पास भी डिटेल नहीं होती. और जब प्लानिंग Correct. इंजीनियर डिटेल कर रहा होता है, क्योंकि प्लानिंग इंजीनियर्स को ये लगता है कि मैं जितना डिटेल शेड्यूल बना दूंगा, मैं अगर 5,000 लाइन का शेड्यूल बना दूंगा तो वो बहुत अच्छी प्लानिंग है. Correct. ये उनकी अपनी वो है, फील गुड फैक्टर है उनका, कि जितना बड़ा शेड्यूल बनाऊंगा उतना अच्छा है. अब वो मेरे बना तो देते हैं, उन्होंने शुरू में बना दिया, डिटेल थी नहीं थी, अजम्पशन किया, जो भी किया उसके साथ बना दिया. अब Correct. जब डिटेल आई, क्योंकि डिटेल कभी ना कभी तो आएगी प्रोजेक्ट में, डिजाइनर भी अपनी ड्राइंग भेजेंगे, सब कुछ करेंगे, नए पैकेजेस आएंगे, तो वो जो Yes. नई डिटेल आई है वो पुराने जो शेड्यूल बना हुआ है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुई या नहीं हुई, ये किसी को नहीं पता होता. हाँ. क्योंकि जब आप नया काम करते हो तो आप नया ठीक तरीके से करते हो, ड्राइंग पढ़ी आपने, नई एक्टिविटी बनाई, नए पैकेजेस बनाए, सारा काम कर दिया. लेकिन अगर आपने पुराने को ठीक करना है तो बहुत मुश्किल काम है कि क्या चीज बदली है, क्या चीज सेम है. ये असेसमेंट करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क. Correct. सो इसके लिए इंडस्ट्री के अंदर रोलिंग वेव प्लानिंग नाम का एक मेथड है, जिसके अंदर जैसे जैसे डिटेल आपके पास आती जाती है, आप उसको अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को उतना डिटेल करते जाते हो. और आफ्टर अ Okay. सर्टेन टाइम नए क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर सीख कर रहे होते हो. कि जैसे बिल्डिंग, एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर 5 तरह के फेजेस होते हैं: स्ट्रक्चर, बेस बिल्ड, हार्ड फिनिशेस, सॉफ्ट फिनिशेस, टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड हैंडिंग ओवर. 6 तरह के फेजेस होते हैं. Right. तो 6 तरह के फेजेस में जब आपका स्ट्रक्चर खत्म हो रहा होगा तो आप बेस बिल्ड के क्वेश्चन पूछ रहे होंगे. जब आपका बेस बिल्ड खत्म हो रहा होगा तो आप हार्ड फिनिशेस के क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि फ्लोरिंग किस तरह की है, डोर किस तरह के लगेंगे, शटर किस तरह के लगेंगे, फॉल सीलिंग किस तरह की है, वॉल प्ले फिनिशिंग किस तरह की है. इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो Got it. प्लान कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर जो प्लान कर रहे होंगे. और वो क्वेश्चंस अलग अलग स्टेक होल्डर्स होंगे, कोई स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से होगा, कोई आर्किटेक्ट से होगा, कोई प्रोक्योरमेंट वाले से होगा. अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे. राइट तो में और जब वो जूते क्वेश्चन लेने के आंसर हो जाएंगे तो वो प्लान रेडी हो जाएगा. वो उस प्लानिंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो रेडी हो जाएगा. उसको हम फुल किटिंग भी बोलते हैं, कि जो भी उस फेज को प्लान करने के लिए इंफॉर्मेशन है वो सारी हमारे पास है. इसका मतलब वो फेज
फुल किट हो गया है। गॉट इट। तो तो यहाँ फुल पे किटिंग पे मैं और थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। तो जैसे ही हम आगे चलते हैं, मैं फिफ्थ पिटफॉल में थोड़ा डिटेल में इसको बात करते हैं। बट यस यहाँ वर्षित। आई हैव दिस क्वेश्चन, जैसे आपने रोलिंग वेव प्लानिंग बताई, तो यस। लेट्स assume कि जो प्रोजेक्ट मैं अभी कर रहा हूँ उसकी ड्यूरेशन है 12 महीने। तो उस प्रोजेक्ट यस। में डेफिनेटली बीच बीच में चेंजेस भी होंगे, मतलब डिजाइन चेंजेस भी होंगे, और चेंजेस भी होंगे, छोटी छोटी चीजें विल कीप ऑन चेंजिंग। तो हाउ do we have this rolling wave planning to incorporate all of these challenges in a 12-month project, hypothetically? So after completion of planning of each phase, there's a step. There is a step of called phase-wise planning validation. So in that Got validation, that plan has to be sent to all the stakeholders with the impact of these changes that has been done in the planning on time, cost, and scope. got it. So whenever a phase is getting detailed, there are some changes in time, cost and planning, और वो सारे changes हम stakeholders को भेज देते हैं to assess कि इस फेज के अंदर अगर हम ये काम करते हैं, जो डिटेल हमारे पास आई है, अगर हम इसके हिसाब से काम करते हैं तो टाइम के अंदर ये डेल्टा आएगा, कॉस्ट के अंदर ये डेल्टा आएगा, और स्कोप के अंदर ये डेल्टा। और सर, अगर मैं डेवलपर हूँ एंड आई हाँ हायर जी। मानव एज अ पीएमसी, तो आप मुझे यस। कितना फ्रीक्वेंटली बताओगे कि इफ आई एम रनिंग बिहाइंड माय स्केड्यूल, या मेरे पैसे ज्यादा लग रहे हैं, या फिर बफर ज्यादा हो रहा है? लाइक हाउ फ्रीक्वेंटली विल यू टेल मी दिस? एवरी वीक we do weekly review meetings at a mutually agreed date and time of the week, और हम हर हफ्ते ये रिपोर्ट शेयर करते हैं कि हम टाइम में क्या डेल्टा है आज के डेट में हमारा, जो भी हमने पिछले 7 दिनों में काम किया है, कॉस्ट में क्या डेल्टा है, जो भी हमारे पास नई डिटेल्स आई हैं, जो भी हमने काम किया है, और हमारा फोरकास्ट क्या है कि अगर हम अंडरस्टूड। यही काम करते रहे तो हमारा प्रोजेक्ट 12 महीने बाद जो खत्म होने वाला है, वो अब 12 महीने है या वो 16 महीने हो गया है। गॉट इट, समझ गया, मेक तो उससे सेंस। उससे काफी एक्शंस इनिशिएट हो जाते हैं। जैसे कल ही मैं एक मीटिंग में था, तो हम्म। वो प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है, प्रोजेक्ट है 12 महीने का, अभी 1 महीना कंप्लीट हुआ है इस प्रोजेक्ट में, और उसमें कुछ काम कर होना था, कंसल्टेंट को और क्लाइंट को कुछ काम करना था, एक वेंडर फाइनल करने थे। तो हम्म। वो फाइनल होने में 10-12 दिन का डिले हो गया। तो वी हम्म। शोड देम कि आपने जो ये 30 दिन में 10 दिन का डिले किया है प्रोजेक्ट में, उसका हम्म। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है। अगर हम हर महीने हर 30 दिन में 10 दिन डिले करेंगे तो प्रोजेक्ट कब खत्म होगा। हम्म। तो थोड़ा सा सबको चमका कि ओके, तो जो भी हम कर रहे हैं डे टू डे में उसका इम्पैक्ट है। तो हाँ, शॉकिंग सरप्राइजेस हम खत्म कर देते हैं। जब आप एवरी वीक एवरी मंथ ये बात करते हो तो सब थोड़ा अलाइंड रहते हैं। करेक्ट। अगर मुझे ऐसा नहीं बॉटल होगा कि हाँ जी, हाँ जी। करेक्ट, आई एग्री, बॉटल नेक्स पता है तो प्लानिंग भी बेटर होगी। ये सर, और विजिबिलिटी, क्योंकि होता क्या है कंस्ट्रक्शन में ना, यूजुअली प्रोजेक्ट 3 साल के, 2 साल के, 1 साल के, इतने लंबे प्रोजेक्ट होते हैं। और जब गॉट इट। आप 3 साल का प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसमें 36 महीने हैं, उसमें करेक्ट। पहले महीने में अगर कुछ डिले हो गया आपको इम्पैक्ट ही नहीं पता लगता, क्योंकि हर एक करेक्ट। आदमी ऑप्टिमिस्ट होता है और कोई भी बैड न्यूज बेयरर नहीं बनना चाहता कि मैं बोलूं जाके कि नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये डिले हो गया है। सब बोलते हैं हाँ हो जाएगा, और एंड की तरफ शिफ्ट करते रहते हैं सारा काम। और एंड में एक टाइम ऐसा आता है जब आप जब हाथ खड़े कर देते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, आप खुद ही देख लो, कोई नहीं कर सकता अब तो इसको। करेक्ट। तो वो जो सिचुएशन आती है उसमें लोग मतलब और तो कुछ नहीं होगा कि मान जाएंगे, बट वो खराब हो जाता है, सबका टेस्ट खराब हो जाता है। मेक सेंस, मेक सेंस। Perfect. I think we can jump on to the other topic for the day, which is teams working on different priorities and schedules. Yes, Varshit. So this is another very big impact creating issue. So प्रोजेक्ट में क्या होता है, मल्टीपल टीम्स काम कर रही होती हैं और सब लोग शायद एक लोकेशन से भी काम नहीं करते हैं। प्रोक्योरमेंट टीम अपनी अलग लोकेशन से काम करती है, आर्किटेक्ट अपने ऑफिस में काम करते हैं, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट अपने ऑफिस में काम करते हैं, एमईपीज के अपने अलग ऑफिस हैं, क्लाइंट अपने अलग ऑफिस में बैठे हैं, और कॉन्ट्रैक्टर्स अपने आप अलग काम कर रहे हैं। So when so Correct. many people are working in so many different locations and so many different teams are working on a project, so सबको sync करना is a very big task. Yes. But manually
कर पाना मुझे लगता है ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। कि अगर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा, लेट्स से अगर 1 लाख स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट है जो कि 1 साल 1.5 साल चलने वाला है, होटल का हम्म, प्रोजेक्ट ले लीजिए जो कि 1.5 साल 2 साल चलने वाला है, तो इट इज अ हम्म, वेरी बिग टास्क अगर कोई मैनुअली इसको करना चाहता है। सो इसके लिए एक सिंक्रोना एक 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 डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिस डॉक्यूमेंट से सबको फीड हो रहा है इंफॉर्मेशन। अच्छा। तो बेसिकली 4 डिफरेंट डोमेन्स हैं जिसमें काम हो रहा होता है। डिजाइन, अप्रूवल, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, जो मैंने अभी बताया आपको। अब ये चारों डोमेन में कुछ ना कुछ टास्क एवरीडे हो रहे हैं। ठीक अब वो है। टास्क जो प्रोजेक्ट का करंट प्रोग्रेस है उसके साथ सिंक में है या नहीं है, ये कोई नहीं देख पा रहा। करेक्ट। और मैनुअली देखना है भी बहुत मुश्किल। तो इसके लिए जो शेड्यूल है वो एक सेंट्रल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो इन सारे डोमेन्स में लोगों को टास्क दे रहा हो। और दे रहा हो इन टर्म्स कि अगले हफ्ते क्या करना है, अगले 7 दिन में क्या करना है, या अगले 14 दिन में क्या करना है, या लेट्स से अगले 1 महीने में क्या करना है। इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा करने में वो आउट ऑफ सिंक हो जाएगा। कि 1 महीने की प्रोग्रेस भी तो उस हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से आप टास्क दे रहे हो। So yeah, this brings me to a very, I think, intriguing Yeah. question. ये क्लियर है कि आपकी जो डिजाइन अप्रूवल प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्टर टीम है, अब उन सबका इंटरेस्ट है प्लान फॉलो करने में, क्योंकि उन सबका सही था वो प्लान बनवाने में, यस। राइट? बट मी एज अ और कॉन्ट्रैक्टर, तो द क्वेश्चन इज यस, मी, प्लीज। तो यस। मी कॉन्ट्रैक्टर मुझे नहीं करना एक्सेल पे फीड, मतलब ये जब हायर हुए थे तो मेरे केपीआईज में नहीं था कि आप बैठ के एक्सेल भरो और आप बैठ के अपडेट करो आपने कितना काम कर लिया। तो यू एज अ पीएमसी, हाउ डू यू मेक श्योर और हाउ डू यू इंश्योर कि वहां जितना काम हो रहा है साइट पर, दिस इज एक्चुअली बीइंग रेसिप्रोकेटेड ऑन द प्लान्स? ऑलराइट। तो वर्षित इसमें 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है कि प्लानिंग करके देना। हाँ, जो कॉन्ट्रैक्टर जिनके साथ अभी हम काम कर रहे हैं, या आप कहो इंडिया में कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, गिनती के 5 6 10 कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जो बिल्डिंग में काम करते हैं। उनके पास अपनी प्लानिंग टीम्स होती हैं। जो बाकी करेक्ट। कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो थोड़ा हैंडीकैप फील करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग। दे आर गुड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, उनके पास रिसोर्स, वो ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है, लेबर के स्ट्रेंथ है उनकी, उनके पास सप्लायर्स बहुत अच्छे हैं। बट जो प्लानिंग की अगर आप बात करोगे, किस हफ्ते क्या काम होना है, किस दिन क्या काम होना है, उसमें भी वो अपनी साइट टीम के ऊपर मेजरली डिपेंड रहते हैं। अच्छा। और साइट टीम के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं। अगर कोई साइट टीम पे कोई मैनेजर अच्छे हैं तो खींच के लेके जाएंगे प्रोजेक्ट को। अगर लेकिन अगर वो उनके कुछ और इंटरेस्ट है या वो बहुत ज्यादा पुश नहीं करना चाहते, तो वो कुछ ना कुछ स्टोरी सुना सकते हैं कि क्लाइंट नहीं दे रहा, ड्राइंग नहीं दे रहा, कहानी कुछ भी हो सकती है। करेक्ट। तो उनके यहाँ भी ये चैलेंज होता है कि कोई सेंट्रली प्लान करके नहीं दे रहा होता, वो भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो जो हम प्लान करते हैं वो उस लेवल की डिटेल पे प्लान करते हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्टर भी उसको यूज कर सकते हैं। तो जो हम प्लान देंगे, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर उसको वीकली रिव्यू मीटिंग में उसके ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर अलाइनमेंट करेंगे, तो जो प्रोग्रेस है वो हमारी टीम में एक साइट कोऑर्डिनेटर नाम का प्रोफाइल है जो साइट पे ही रहते हैं, वो प्रोग्रेस कैप्चर करते रहेंगे। कॉन्ट्रैक्टर को कोई कोई प्रोग्रेस कैप्चर नहीं करना है। बट कॉन्ट्रैक्टर को प्लान समझना जरूरी है कि क्या काम होने वाला है। और उसमें भी हमारा एक टास्कफुल गेटिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम काम करते हैं और उसके अंदर हमें 4 चीजें चाहिए, अगर कोई टास्क साइट पे होना है तो उसमें 4 चीजें हैं जो हमें चाहिए: मटेरियल, मैन पावर, ड्राइंग एंड वर्क फ्रंट। तो मटेरियल मैन पावर तो चलो कॉन्ट्रैक्टर का ही हो गया, लेकिन ड्राइंग तो उनको चाहिए होगी ना। तो अगर कोई काम प्लानिंग वाला बोल रहा है, शेड्यूल बोल रहा है काम होना चाहिए साइट पे, और ड्राइंग अवेलेबल नहीं है, तो उनको भी हेल्प चाहिए कि मेरे को ड्राइंग ला के दो। और जो ये कम्युनिकेशन है ना, ये थोड़ा वे कम्युनिकेशन है। वे कम्युनिकेशन कैसे? जब काम डिले हो जाता है तब सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, पीएमसी वाला कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर पीएमसी को। करेक्ट। प्रोएक्टिवली कोई नहीं करता कि अगले 7 दिन में क्या काम होना है, उसकी ड्राइंग क्या चाहिए, या अगले 15 दिन में क्या काम होना है, उसकी क्या क्या ड्राइंग चाहिए। वो डिस्कशन करेक्ट। बहुत कम प्रोजेक्ट में हो रहा होता है। गॉट इट। तो तो आप, इस तरह से। और तो चौथा हो गया वर्क फ्रंट। अब एक एक साइड पे अगर 5 कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर का काम दूसरे कॉन्ट्रैक्टर पे डिपेंडेंट है, तो वो वर्क फ्रंट का भी डिस्कशन तब हो रहा होता है जब डिले हो जाता है। प्रोएक्टिवली वहां भी कोई नहीं उसको हैंडल कर रहा होता। करेक्ट, मेक सेंस, मेक सेंस, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और हैव यू ऑटोमेटेड ऑल ऑफ दिस? क्योंकि आई थिंक मैनुअली तो अगर आप भी ये कर रहे हो तो मैनुअली तो मैं भी कर ही रहा हूँ ऑन माय यस, यस। प्रोजेक्ट। तो वी हैव
Yes. We have in-house, we have developed an in-house tool to sync this MSP schedule and our this weekly agenda. So we Okay, run that schedule every week on every project and to create those agendas from the updated schedule. अगर शेड्यूल आगे जा रहा है, तेज चल रहा है प्रोजेक्ट, तो वो उस हिसाब से साइट पे काम बताएगा. अगर शेड्यूल लेट हो गया है तो भी वो उसी हिसाब से काम बताएगा. लेट्स से कुछ कैपिटल आइटम्स होते हैं प्रोक्योरमेंट में, जैसे जिसमें बहुत सारा कैपिटल इंटेंसिव आइटम्स हैं और जिनका लीड टाइम है. फॉर got एग्जाम्पल, क्लाइंट को पता होता है कि अगर मेरे को डीजी खरीदना है तो मुझे किस दिन डीजी खरीदना है, किस दिन साइट पे चाहिए डीजी, और मैं किस दिन ऑर्डर दूंगा, उस दिन डीजी आ जाएगा. correct. और उसके हिसाब से प्रोजेक्ट डिले हो गया, उसके हिसाब से प्रोजेक्ट डिले हो गया let's say. तो क्लाइंट ने अपनी अंडरस्टैंडिंग तो बना रखी है, लेकिन वो कब उस पर काम करना शुरू करें वो डेट मिस हो जाती है. तो वी अलाइन द प्रोक्योरमेंट एज वेल कि अगर एक डीजी आना है और शेड्यूल एक महीना डिले हो गया तो हम वो इंश्योर कर लेते हैं कि उसी हिसाब से प्रोक्योरमेंट भी आगे हो जाए. या अगर हम शेड्यूल तेज कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट एक महीना तेज होने की जरूरत है, तो प्रोक्योरमेंट भी एक महीना तेज हो जाए. ऐसा ना हो सिविल वाले भाई ने तो अपना काम टाइम से कर दिया या एक महीना पहले कर दिया, लेकिन जो उसके बाद एमवीपी वाले लोग आने वाले हैं वो साइट पे नहीं. Makes sense. और सर एक आखिरी क्वेश्चन, आप do you also यस. deploy somebody at site to update all of these things, या फिर you expect somebody on site to update every नहीं, वी हैव आवर ओन scenes टीम. that we have वी checked? वी डिप्लॉय आवर ओन टीम बिकॉज ट्रेनिंग बहुत बड़ा इशू है, और ट्रेनिंग से बड़ा इशू है एक्सेप्टेबिलिटी. कि अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्टर से Correct. एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनकी टीम, क्योंकि वो खुद तो नहीं करने वाले, उनकी टीम में कोई करने वाला है, और उनकी टीम में उसके बाद 50 काम और हैं, और ये डेटा वाला काम नहीं होने वाला, तो हम नहीं एक्सपेक्ट हाँ, करते कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी डिजाइनर कर रहे होंगे आज के डेट में. हमारी टीम makes में sense. पीएमओ है, पीएमओ टीम में पीएमओ कोऑर्डिनेटर है, सपोर्ट है, प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव है, और प्लानिंग इंजीनियर है. यही 4 लोग मिलके सारा डेटा अपडेट कर रहे हो. Understood. Makes sense. That और brings बेसिकली, us to the, go ahead, यस यस, सो ये go ahead, बेसिकली वो go डेटा ahead. अपडेट नहीं कर रहे होते, वो काम ही कर रहे होते हैं. डेटा अपने आप अपडेट हो रहा होता है. तो हमने अपना इकोसिस्टम ऐसे बनाया कि लोग अपने टास्क करते हैं और टास्क के हिसाब से काम अपने आप कंप्लीट हो जाता है और डेटा अपने आप अपडेट हो जाता है. This makes a lot of sense क्योंकि मतलब I have not been in this industry for as long as you have been, but for whatever little time I have worked with big construction companies like JLL, Brigade, RMZ, Shobha, M3M. This I have realized so far is nobody likes to sit on Excel sheets and report कि this is done, that is done. So I think if somebody is doing that, they are focusing on their work, तो काफी synergy आ जाती है कि ठीक है मेरे को अपना यस काम यस, करना ट्रू है, मैं वही कर रहा हूँ, आप करना है, आप करवा लो. ट्रू ट्रू ट्रू. Makes sense. All right, that brings us to the last topic of the day, lack of visibility, day-to-day progress. I think अगर वो वीक को हम डेज में ब्रेक डाउन कर देंगे, वो तो गॉड लेवल मॉनिटरिंग हो जाएगी. यस, वी लाइक टू सो हियर फ्रॉम यू. दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. हमारे यहाँ जो डेटा कलेक्शन है वो डेली होता है. वीकली हम लोग अलाइनमेंट मीटिंग्स कर रहे होते हैं, और मंथ में हम लोग डिसीजंस को पुश कर रहे होते हैं ताकि प्रोजेक्ट स्ट्रीमलाइन रहे. सो जो गॉट इट. जो इसका एट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिसको आप देखोगे इस पिटफॉल का, वो बेसिकली जो भी प्लान हमने किया था उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. अगर आप लैक ऑफ विजिबिलिटी नहीं है और हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहे हैं प्रोग्रेस पे. जैसे कई बार क्या होता है, अगर आप किसी से पूछें कितना काम हो गया, सब लोग बोलते हैं 80% हो गया, 90% हो गया. करेक्ट. 90% क्या हो गया? 90% पूरा प्रोजेक्ट मतलब कैसे असेस कर लिया? फाइनेंशियली 90% हो गया है, फिजिकल प्रोग्रेस 90% है, किस तरह से असेस हुई है वो किसी के पास क्लैरिटी नहीं होती. हाँ, तो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रोजेक्ट में, वो एक बहुत बड़ा मसला है, और उसके ना होने की वजह से एग्जीक्यूट करना प्रोजेक्ट को, आप देखोगे एक 100% प्रोजेक्ट अगर एग्जीक्यूट होना है तो 95% बड़े इजीली हो जाएगा. जो लास्ट का 5% है ना, वो बहुत एफर्ट ले जाता है. ये तो है. और ट्रू. उसका रीजन यही है कि किसी के पास ये नहीं पता होता कि कहाँ पे क्या काम बचा है. ये इंफॉर्मेशन भी मिसिंग नहीं होती क्लियरली, एक डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं होता कि किस लोकेशन पे क्या काम बचा है.
Got it. इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल करवाना अपने आप में एक टास्क है ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। सो जैसे मैंने आपको बताया, हम फुल किटिंग्स के थ्रू काम करते हैं। तो हम एक प्रोजेक्ट में 5 लेवल में फुल किटिंग करते हैं। वन इज प्रोजेक्ट के लेवल पे, सेकंड फेज मैंने आपको बताया, जो भी फेज को प्लान करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास आ जाती है तो हम उसको फेज फुल किटिंग बोलते हैं। Okay. पैकेज फुल किटिंग, एक्टिविटी फुल किटिंग या टास्क फुल किटिंग। टास्क फुल किटिंग मैंने आपको बताया, मैन पावर, मटीरियल, ड्राइंग एंड वर्क फ्रंट, Got ये it. 4 चीजें होती हैं। तभी साइट पे वो काम एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो साइट पे काम नहीं हो सकता। Got it. तो फुल राइट। किटिंग का क्या मतलब है सर? फुल किटिंग बेसिकली जो भी किसी काम को करने के लिए जो भी प्री रिक्विजिट्स चाहिए, वो सारे प्री रिक्विजिट्स अरेंज करना इज फुल किटिंग। Okay. अगर आपको लेट्स से खिचड़ी बनानी है अपने घर में, अपने किचन में, तो आपको खिचड़ी बनाने के लिए एक पैन चाहिए, राइस चाहिए, दाल चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, मिर्च चाहिए, तेल चाहिए, जीरा चाहिए, Correct. और ऑफ कोर्स गैस चाहिए। तो जब ये हाँ, सारी चीजें आपके पास होंगी तो आपकी खिचड़ी फुल किट हो गई है। और जब आप उसको बना लेंगे तो आपने एक्चुअल में खिचड़ी बना ली है। मेक सेंस, मेक सेंस। तो ये फुल किटिंग्स वी आर डूइंग इट टास्क बाय टास्क। तो पहले प्रोजेक्ट वाइज, फिर फेज वाइज, फिर पैकेज वाइज, फिर एक्टिविटी वाइज, एंड दिस इज द ब्रेकडाउन, दिस इज द हायरार्की कि प्रोजेक्ट में यस, कंसिडर दिस इज फेजेस। द टॉप डाउन, ओके। दिस इज द टॉप डाउन फुल किटिंग। प्रोजेक्ट में जब हम कोई प्रोजेक्ट बुक करते हैं तो हम उसके अंदर जो भी लोग उसके अंदर डिप्लॉय होने होते हैं उनकी वैकेंसीज क्रिएट कर देते हैं। जो भी इनवॉइसेज होनी होती है उसके अंदर जो जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ चाहिए होता है वो उसके अंदर आ जाता है। जो भी ट्रैकर उसके अंदर होता है। कई बार प्रोजेक्ट में हम पीएमएस करते हैं, कई बार साइट ड्रिवन करते हैं, कभी हम बिल ऑडिट करते हैं, कभी हम रीबार डिटेलिंग करते हैं। तो जो भी हम काम करने वाले हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर हम वो वाला ट्रैकर इंस्टॉल कर देते हैं। तो जब ये 3 चीजें हो जाती है तो हम उसको प्रोजेक्ट फुल किट बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट फुल किट हो गया है, नाउ इट इज गुड टू गो ऑन बोर्ड। मेक देन सेंस। देयर इज फेसफुल किटिंग। फेसफुल किटिंग के अंदर हम बात करते हैं कि जो नया फेस ट्रिगर हुआ है, लेट्स से बेस बिल्ड ट्रिगर हुआ है किसी प्रोजेक्ट में, तो बेस बिल्ड के अंदर हमें प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी की क्लैरिटी मिल गई है प्रोक्योरमेंट टीम से। यूजुअली वो क्लाइंट की टीम होती है। हमें क्या क्या एक्टिविटी एग्जीक्यूट करनी है वो क्लैरिटी मिल गई है ड्राइंग से, जो भी ड्राइंग आई है। ओके। हमें क्या क्या वेंडर ऑन बोर्ड करने हैं उसकी क्लैरिटी मिल गई है। तो ये 3-4 चीजें जब मिल जाती हैं तो क्या टाइमलाइन है उस फेज का जो हम फोरसी कर रहे हैं, ताकि जो भी डेल्टा निकलेगा वो हम बता पाए प्रोजेक्ट में। तो ये सारी चीजें जब आ जाती हैं तो हम उसको फेजफुल किट बोलते हैं। गॉट इट, अंडरस्टूड। और आई एम प्रिटी श्योर कि आपने बहुत रॉबस्ट सिस्टम बनाया होगा फॉर फुल किटिंग्स ऑन दिस यस। टॉप अप्रोच। तो आई यस। मीन, not getting into the pricing and stuff, but if I want to work on your structures, so is it possible that instead of deploying you on the whole project, I kind of learn from you and understand from you कि आप मेरे प्रोजेक्ट का बस ये टॉप डाउन अप्रोच बना दो with all the plans? तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें बताई दी हैं। प्रोजेक्ट में मैंने आपको बताया 3 चीजें हम करते हैं, तो आप अपने प्रोजेक्ट में इजीली कर सकते हैं रेप्लिकेट इसको। Okay. उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से हम करते हैं, वो सॉफ्टवेयर यूज नहीं होगा जो हम करते हैं, बट आप कर सकते हो, मैनुअली भी आप कर सकते हो। फेज में मैंने आपको बता दिया आप क्या कर सकते हैं। टास्क में मैंने आपको बता दिया कि कोई भी टास्क अगर आप प्लान कर रहे हो वीक का, तो उसके आगे आप 4 कॉलम बना सकते हो। मैन पावर, मटीरियल, लेबर, मैन पावर, मटीरियल, ड्राइंग एंड वर्क फ्रंट का, और आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो इट Got इज it. इजिली इम्प्लीमेंटेबल। और अगर आप चाहो तो हम इसके ऊपर एक अलग से सेशन कर सकते हैं, क्योंकि इट इज दैट डीपर टॉपिक। Makes sense. Makes sense. All right. Sir, I think let's say if for my project today, I want to consult you for your services. So how would that go? Like, how do we begin? तो जैसा हमने शुरू किया था डिस्कशन, मुझे लगता है सबसे पहले प्लानिंग से ही बात करनी चाहिए। आप जो भी प्रोजेक्ट अभी आप कर रहे हैं, जिसमें भी आप इन्वॉल्व हैं, उस प्रोजेक्ट की आप डिटेल्स शेयर करिए हमारे साथ। विल ट्राई टू कंडक्ट दैट CYC 21 प्रोग्राम ऑन दैट प्रोजेक्ट। और Okay. उसके बाद फिर हम बहुत बेटर क्लैरिटी के साथ बैठे होंगे कि आपको पीएमसी से क्या रिक्वायरमेंट है, या आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग टीम से क्या रिक्वायरमेंट है, और वो हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो हम आपके लिए एक बहुत ही टेलर मेड सोल्यूशन वर्कआउट कर पाएंगे। Got it. क्योंकि जो And CYC 21 है उसके अंदर वो एक्चुअल में खाली कंप्यूटर पर बैठ के प्लान नहीं बनता है, उसके अंदर 3 या 4 मीटिंग्स भी होती हैं स्टेक होल्डर्स के साथ।
और वो मीटिंग बहुत पावरफुल है, तो उसके अंदर मैसिव अलाइनमेंट होता है प्रोजेक्ट टीम का। तो Understood. जैसा मैंने बताया कि हम डेली डेटा कलेक्शन करते हैं, वीकली अलाइनमेंट है, मंथली डिसीजन मेकिंग है, हम लोग प्रोजेक्ट बफर मॉनिटर करते हैं इंस्टेड ऑफ माइलस्टोन डेट्स, हम वीकली रिव्यू मीटिंग्स करते हैं कोर्स करेक्शन के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जो प्लान को एग्जीक्यूट करने में हमारी हेल्प करती हैं, और या आप समझिए ये सारे वो टूल्स हैं जिनके थ्रू हम अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ये तो मतलब I would love to conduct another session and like to know more about these things, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। All right. In the राइट। meantime, I think we are now open to questions. अगर आपको कुछ भी पूछना है, you can just unmute yourselves, everyone, and ask. Feel free to raise up any questions. And if not, Mr. Khil sir, if you would like to share anything about the session, please feel free. So I do love this session. I had a wonderful conversation with you. I would like to have another session on some other topic as well. So देखते हैं कैसे जाता है। Super, super, super. Perfect. If there are any questions, we'll just wait for another minute and you can unmute yourselves, ask anything, or you can write in the chat box. In the meantime, Antriksh, are you here? All right, the next time, Akhil sir, whenever we have this meeting, we can also like have a round table discussion. Like 4, 5 people can sit together and discuss challenges in a deep dive. Oh, that would be wonderful. Perfect, perfect, perfect. So the way forward is what we'll do is we'll obviously share the recordings with all of the attendees, and we'll also share some of the material that can probably help them with their planning better. We can also share the slide that we had just presented, and we will individually connect with every attendee and discuss what are the challenges that they are facing in their construction projects. And looking forward to a couple of conversations from this, and would love to know more and deep dive into what is it that our audience is doing, what kind of projects they're involved in and stuff. I would love to help anyone who is having any issue with the project management Super, in whatever super, way possible. super. That sounds amazing. On that note, let's end this conversation here. Look forward to seeing you on a super cool session again next month, right? Thank And you, we'll thank you, Ashwin. Thank you so much. And thank you, Dipakshi. Thank you, Zilmit, for hosting and helping to conduct all of this very smoothly. And thank Thank you, you, Bala. Harshit. Thank you so much. All Thank right. you. All right. See Thank you you, guys. everyone. Thank you for attending. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you.